guys, what's up? This is Sunil sir. Today I'm going to start the new topic. The name is the derivation of the C formulas. Okay, of the equation of motion. Now let's explain the one things again here. First of all, we know that the derivation of three formulas of the equation of motion, we have to derive this two way. First of all, analytical method, and second one is graphical method. So first we have to discuss about the analytical method by which we have to derive the equation of motion. This is very easy method by which we can easily find out the equation of motion here. Okay, there are the three equation of motion: v equal to u plus at, s equal to ut plus half at square, and v square equal to u square plus 2as. ओके, सो ये तीनों जो इक्वेशन है, पहले हम लोग क्या करेंगे, इनको हम डिस्कस करेंगे बाय एनालिटिकल मेथड डेरिवेशन करना, एंड आफ्टर दैट वी विल आल्सो डिस्कस हियर द ग्राफिकल मेथड आल्सो. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट द इक्वेशन ऑफ मोशन हियर. So suppose that a body moving with initial velocity u, and after t time it get a final velocity v with moving a uniform acceleration a. Okay, now look at here. Suppose the body moving with initial velocity u with uniform acceleration a, and it's become a final velocity v after t time. Okay, so t time में क्या होती है, उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जा रही है, v हो जा रही है व्हेन द बॉडी मूविंग विथ यूनिफॉर्मली एक्सेलेरेशन a. Okay, so you all know that in time t it also covered the distance also, which is also known as the s. तो ये चार पांच चीज़ें तो आपको पता चल गई कि व्हाट इज़ u, व्हाट इज़ v, व्हाट इज़ t एंड व्हाट इज़ a. u मीन्स इनिशियल वेलोसिटी, v मीन्स फाइनल वेलोसिटी, t मीन्स टाइम, and s means distance. Okay, and we all know that the unit of also, look at here, there is the unit also given here. This is the unit. Acceleration is equal to meter per second square. इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी यूनिट क्या होगा उसका, मीटर पर सेकेंड होगा. टाइम का यूनिट सेकेंड होता है और डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, मीटर होता है. सो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन. हाउ वी हैव टू डिराइव हियर. सो लिसन, बिफोर गोइंग टू द स्टार्ट एनी इक्वेशन ऑफ मोशन यू हैव टू राइट डाउन दिस वन पॉइंट. ये चीज़ें आपको लिखनी ज़रूरी होंगी, बिकॉज वी हैव टू एक्सप्लेन व्हाट आर द, जो भी आप लोग सिंबल लिखते हो उसका, वो आप डायरेक्टली ना लिख करके इस तरीके से आप लिखोगे. सपोज द बॉडी मूविंग विथ इनिशियल वेलोसिटी u with uniformly acceleration a, and after t time it become a final velocity v. So let's start what we have to write over. Let's see. As we all know that the acceleration is equal to what, rate of change of velocity. Rate of change of velocity, as we all know that the rate of change of velocity is also noted down as the final minus initial velocity upon time. Okay, so there is the final velocity v and this is the initial velocity u, and upon में time t हो गया. So we all know that an acceleration is also denoted by a. Just wait. Acceleration is also denoted by a. So the a is equal to v minus u upon t, and by the cross multiplication it will become at. At is equal to v minus u, and after that we all know that the u is going to the left side and become positive is here, and after that it will become a v equal to u plus at. Now this is the equation number first of the motion. ओके, तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया हाउ वी हैव टू प्रूव द इक्वेशन ऑफ मोशन बाय द एनालिटिकल मेथड. एंड मैंने पहले भी बताया कि ये इक्वेशन ऑफ मोशन बहुत ईजी होता है एनालिटिकल मेथड से प्रूफ करना. अगर आपको इक्वेशन ऑफ मोशन याद नहीं है तो भी आप इजीली इसको इस तरीके से प्रूफ करके आप इसको लर्न कर सकते हो. आर यू गेटिंग माय पॉइंट. तो बहुत इजी मेथड है, आप लोग को समझ में आ गया होगा. अगर नहीं समझ में आया तो आप इसको कमेंट करके पूछ सकते हैं, फिर से अगेन हम एक्सप्लेन कर सकते हैं इसको कुछ न तरीके से, बट दिस इज़ द बेस्ट वे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन. सेम द नेक्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में क्या होगा, सेम स्टेटमेंट आपको लिखने हैं. सपोज अ बॉडी हैविंग द इनिशियल वेलोसिटी u and after t time it and body having initial velocity u and moving with a uniformly acceleration, after t time it get velocity v. Okay, so look at here what we do here, and cover the total, they cover the distances here, what, s. So look at here what we do here. As we all know that the what do you mean by the average velocity. Average velocity क्या होता था, हमने उसको पढ़ा था. एवरेज वेलोसिटी क्या था आपका, एवरेज वेलोसिटी था आपका मीन ऑफ दी टू वेलोसिटी. ओके, अरिथमेटिक मीन ऑफ दी टू वेलोसिटी. तो सिंपली यहाँ पे अरिथमेटिक मीन ऑफ द टू वेलोसिटी यानी क्या हो गया, सपोज द इनिशियल वेलोसिटी u है, फाइनल वेलोसिटी v है.
तो अरिथमेटिक मीन क्या बनेगा, u प्लस वी अपन 2 बनेगा, and this is the u plus v by 2 is the average velocity. And as we all also know that the total distance traveled by the body is equal to velocity into time. So here is the average velocity हमने count करा है, तो average velocity into time होगा total distance traveled by the body. Now the total distance traveled by the body is s. So let's look at here, you have to write down here s, and s is equal to what, average velocity into time. ओके नाउ लुक एट, ये प्लस लिखा है, ये प्लस नहीं होगा, यहाँ पे टाइम होगा, जस्ट वेट, यहाँ पे टाइम होगा, मल्टीप्लाइड होगा. ओके तो u प्लस वी अपॉन 2 इंटू टाइम, एंड वी ऑल नो दैट आल्सो द v इज इक्वल टू व्हाट, v इज इक्वल टू u प्लस at. ओके सो पुट द वैल्यूज ऑफ v इन प्लेस ऑफ v इक्वल टू u प्लस at फ्रॉम द इक्वेशन नंबर फर्स्ट. ओके फ्रॉम द इक्वेशन नंबर फर्स्ट. So if you put these values in the equation number this one, s equal to u plus v upon 2 into t, तो यहाँ पे हमने पुट करा तो कुछ ऐसा फॉर्मेट आएगा इस टाइप का. एंड वी ऑल नो दैट देयर इज a u plus u also, तो इट विल बिकम 2u and plus at upon 2 and into time. Okay is equal to s. So what will happen here, and upon में जो 2 था वो क्या हो गया आपका, वो आपका चला गया, वो हो गया आपका. एंड आफ्टर दैट लुक एट हियर, ये जो हो गया 2u प्लस at अपॉन 2 इंटू टी, सो मल्टीप्लाई t इंटू दी ब्रैकेट साइड. ओके ब्रैकेट के अंदर t को मल्टीप्लाइड करते हैं, ये बन जाएगा आपका 2ut प्लस at स्क्वायर अपॉन 2. आर यू गेटिंग माई पॉइंट, 2ut प्लस at स्क्वायर अपॉन 2. एंड अब इसको क्या करते हैं ना, अब जो अपान में जो 2 लिखा है ना उसको आपने क्या करना है, फिर से दोनों के अंदर डिवाइड करना है बाई बाई. ओके जब आप डिवाइड करोगे तो 2ut का 2 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा. आलू काट गया, इसको हम एक्सप्लेन यहाँ कर देते हैं. s इक्वल टू 2ut अपॉन 2 प्लस हाफ at स्क्वायर. ओके ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये कुछ बनेगा s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर. I think, and this is the equation number second equation of motion. I think we have to prove now here the s is equal to ut plus half at square. So how we have to prove that here, from the equation numbers average velocity. From the average velocity हमने क्या करा, इसको प्रूफ कर दिया, because we know that the average velocity is equal to arithmetic mean of the two velocity and u plus v upon 2. And we also know that the using the distance formula is here also. Distance formula होता है average velocity into time. Okay, and after that using the equation number first v इक्वल टू u प्लस at. एंड सो हम लोग यहाँ पे क्या करा, v को रिप्लेस करा एज कम्पेयर टू द a, अरे सॉरी u. अब इस तरीके से हमने रिप्लेस करने के बाद जो हमारा इक्वेशन बन गया है वो क्या बना, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर. तो दैट इज़ द वे बाई विच वी हैव टू आल्सो प्रूव द इक्वेशन ऑफ मोशन बाय एनालिटिकल मैथड. दिस इज आल्सो वेरी वेरी ईजी. ये मेथड बहुत ईजी था, इस तरीके से आप क्लियर कर सकते हो. तो आई होप आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा. ओके अब एक बार और अच्छे से देख लो इसको. नाउ लेट्स स्टार्ट द इक्वेशन नंबर थर्ड. सेम थिंग इज हियर, एज वी ऑल नो दैट द इक्वेशन नंबर फर्स्ट, दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट. ओके सो द इक्वेशन नंबर फर्स्ट इज आल्सो रिटेन हियर. v minus u, sorry, v equal to u plus at is also written in the v minus u equal to at. And we all know that the t is equal to what, v minus u upon a. अब इसको ध्यान से देखना कि इस तरीके से हम लिख सकते हैं कि नहीं. अब बताओ इसका नीड क्यों पड़ा, बिकॉज वी नो दैट द इक्वेशन ऑफ मोशन इज हियर v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as. अब इस इक्वेशन में आप ध्यान से देखो तो v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as में क्या दिया हुआ है, जो आपका v है फाइनल वेलोसिटी है, u है इनिशियल वेलोसिटी है, a एक्सेलरेशन है और s है आपका टोटल डिस्टेंस कवर बाय द बॉडी है. तो यहाँ पे चीज़ें ध्यान देखो कि यहाँ पे कहीं भी t नहीं है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल ना हमने क्या करना पड़ेगा, हमने इसको रिप्लेस करना पड़ेगा. ओके अब किसको रिप्लेस करेंगे, तो यू नो दैट द s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर. सो ut प्लस हाफ at स्क्वायर में जो s है ना, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, उसमें जो जहाँ t लिखा है ना उनको रिप्लेस करना पड़ेगा. अब ये t कहाँ से रिप्लेस करेंगे, तो t को रिप्लेस करेंगे फ्रॉम द इक्वेशन नंबर फर्स्ट से. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड आउट द t वैल्यूज़ फ्रॉम द इक्वेशन नंबर फर्स्ट. तो यही हमने यहाँ पे काम किया है. आपने क्या करा यहाँ पे,
v equal to u plus at. This is the equation number first. Or from this equation we have to find out the value of t in विथ रिस्पेक्ट ऑफ वी यू एंड ए के रूप में, ठीक है ना। हमने क्या करा, टी की वैल्यू फाइंड आउट करा और फिर उसके बाद क्या करा हमने, पुट दिस वैल्यूज ऑफ टी इन द इक्वेशन नंबर सेकेंड. ओके, if you put these values of the equation number second is equal to ut plus half at square, then we have to find out this kind of things. Okay, अब हमने देखा यहाँ पे क्या मिला हमें, u एंड v माइनस यू अपन ए प्लस हाफ ए v माइनस यू अपन 2 का, सॉरी यहाँ पे ना आपका क्या होगा, a होगा, ये a होगा, v माइनस यू अपन a का होल स्क्वायर. ओके, अब इसके बाद हमने क्या करा, इफ़ यू मल्टीप्लाइड दिस वन इक्वेशन, आपका सेकेंड स्टेप में देखो मल्टीप्लाइड किया यहाँ पे, तो यू वी माइनस यू स्क्वायर अपन ए होगा वह, एंड हाँ प्लस हाफ ए, एंड आफ्टर दैट इन ब्रैकेट में क्या बना, अगेन बना यहाँ पे, ये तो आपका था स्क्वायर था, तो इस केस में हमने क्या करा, वी माइनस यू का होल स्क्वायर बन गया ये तो वी माइनस यू का होल स्क्वायर क्या बनता है, वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2u v अपन ए स्क्वायर. ओके, बना यहाँ पे. अब इसके बाद क्या होगा, अब ये ए स्क्वायर जो था, ये वाले इससे ए से ये वाला स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो आपका कुछ फॉर्मेट नेक्स्ट स्टेप में कुछ ऐसा बनेगा, यू वी माइनस यू स्क्वायर अपान ए प्लस हाफ वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2u v अपान ए बनेगा. देखो बना है यहाँ पे. ओके, दिस इज द एंड द नेक्स्ट स्टेप क्या बनेगा यहाँ पे. अब देखो यहाँ पे दोनों में ना डिनोमिनेटर में ए है, तो जब दोनों में डिनोमिनेटर में ए है तो उस केस में हमने क्या करना है, उस डिनोमिनेटर में ए जो है ना उसको क्या करना है, आपको एलसीएम लेना है. ओके, एलसीएम लेने के बाद क्या करना है, इनको ऐड करने की कोशिश करना है. तो जब आप एलसीएम लोगे तो यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे ये आपका 2a है, यहाँ पे a है, एलसीएम आपका 2a बनेगा. तो 2a बनेगा तो मल्टीप्लाइड करने पे क्या आएगा, कुछ इसको मल्टीप्लाइड करेंगे तो ये बनेगा 2u v माइनस 2u स्क्वायर, एंड ये प्लस के साथ v स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2u v बनेगा. एंड आफ्टर दैट जब 2u v से कैंसिल होगा, दिस इक्वेशन से कैंसिल होगा, तो और फिर इसके बाद यू स्क्वायर माइनस 2u स्क्वायर से कैंसिल होगा, तो उसके इसमें बनेगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपन 2a. कुछ ऐसा फॉर्मेट बनेगा, जस्ट वेट. नो जस्ट वेट. कुछ ऐसा फॉर्मेट बनेगा. ओके, तो ये बनेगा आपका क्या, एस इक्वल टू तो हमें पता ही करना था, तो एस इक्वल टू बनेगा वी स्क्वायर एंड जो 2u स्क्वायर माइनस 2u स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर था, तो ये बनेगा क्या आपका माइनस यू स्क्वायर बनेगा, यानी वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, और अपान में हमने एलसीएम लिया था 2a, तो अपान में 2a हो गया. अब आपको पता है कि एस इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपन 2a है, तो आपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा और ये बन गया आपका 2as इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर. एंड यू नो दैट वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपन 2as इक्वल टू 2as is the third equation of motion, because u square going to the left side and become v square is equal to u square plus 2as, and this is the third equation of motion. Okay, so आपको क्लियर समझ में आ गया हाउ वी हैव टू प्रूव दैट द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन बाय द एनालिटिकल मेथड. दिस इज आल्सो द एनालिटिकल मेथड. ओके, तो इस तरीके से हमें क्या करना था, इस इक्वेशन को भी प्रूव कर दिया. तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हो गया, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन हो गया, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हो गया बाय द एनालिटिकल मेथड. एंड आफ्टर द लेट्स स्टार्ट द न्यू टॉपिक. द नेक्स्ट नेम इज द circular motion. And now look here, in the next video we will discuss about the provision the graphical equation, the equation of motion by the graphical method. So let's start the first of all circular motion also, and after that we have discussed about the analytical method. Okay, the equation of motion by the graphical method. So let's start the circular motion first of all. Now the circular motion is here. The motion of the body in a circular path is called circular motion. तो सिंपली यहाँ पे देखो रेक्टिलिनियर मोशन के बारे में हमने डिस्कस किया था. द मोशन ऑफ द बॉडी विच आर मूविंग इन द स्ट्रेट लाइन इज नोन एज द रेक्टिलिनियर मोशन. तो इसी तरीके से जब कोई बॉडी ना आपकी सर्कुलर पाथ में मूव करती है तो उस बॉडी को जो मोशन होता है उसको क्या बोलते हैं, हम सर्कुलर मोशन बोलते हैं. ओके, अब बात करते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में. व्हाट डू यू मीन बाय द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन.
तो लुक एट हियर, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इफ़ द बॉडी मूव इन सर्कुलर पाथ विथ यूनिफॉर्म स्पीड इट्स मोशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक बॉडी अगर क्या होता है कि अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर पाथ में अगर यूनिफॉर्म स्पीड, यानी यूनिफॉर्म मतलब क्या होता है, यूनिफॉर्मली स्पीड में क्या होता है कि अगर आपका मूव करती है तो उस तरीके से बॉडी को हम क्या बोलते हैं कि द बॉडी मूविंग इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज आल्सो नोन एज एक्सेलरेटेड मोशन। ध्यान से देखना है, यहाँ पे ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये क्वेश्चन बार बार MCQ टाइप में पूछा भी गया है कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज आल्सो नोन एज द accelerated motion because in a circular motion of a body continuously change its direction। ओके, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ऑफ द बॉडी जो होता है वो क्या होता है, आपका एक एक्सलेटेड मोशन होता है बिकॉज इट चेंज द डायरेक्शन। ओके, ये क्या करता है, अपने डायरेक्शन क्या होता है टाइम टू टाइम क्या करता है, चेंज करता चला जाता है। तो इस केस में इसकी मोशन को हम क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज द एक एक्सलेटेड मोशन है। ओके, जिसमें आपकी वेलोसिटी क्या होती है, चेंज होती चली जाती है। ओके, नाउ द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्किल ऑफ द रेडियस आर, लेट द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्किल ऑफ द रेडियस इज आर, then the circumference of the circle is here the 2 pi r, and if the body take time t to go to the around the circular path, then the velocity v is given by here 2 pi r upon, just wait, here is not 2, this is the time। तो यहाँ पे बनेगा टोटल डिस्टेंस अपन टाइम होता है, तो यहाँ पे क्या बना, टोटल डिस्टेंस 2 पाई आर था, तो एवरेज वेलोसिटी यहाँ पे क्या बनेगा, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू 2 पाई आर अपन टी। सो दिस इज द सर्कुलर मोशन या सर्कुलर वेलोसिटी। हाउ वी हैव टू फाइंड आउट हियर, द v इज इक्वल टू 2 पाई आर अपन टी, वेयर आर इज द रेडियस ऑफ द सर्किल इन विच द बॉडी इज मूविंग। सो आई थिंक आपको क्लियर समझ में आ गया व्हाट डू यू मीन बाय द सर्कुलर मोशन एंड व्हाट डू यू मीन बाय द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ओके, and how we have to find out this velocity is here। okay, so आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। so dear students, I have complete this one things। आपने इस वीडियोस में क्या क्या देखा, आपने देखा यहाँ पे इक्वेशन ऑफ मोशन, डेरिवेशन ऑफ द इक्वेशन ऑफ मोशन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, एंड आफ्टर दैट वी हैव आल्सो डिस्कस हियर द सर्कुलर मोशन इज हियर। ओके, नाउ अब से हमारा चैप्टर ये कंप्लीट हो चुका है, एंड द नेक्स्ट वीडियो वी हैव आल्सो डिस्कस हियर द अगेन मेन पॉइंट इज हियर द प्रूफिज्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ मोशन बाय द एनालिटिकल मेथड। ओके, सो इसको भी हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो आप उसके लिए वेट करो। ओके, एंड अब तक के हमारा ये पूरा टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। सो बाय बाय डियर स्टूडेंट्स।